علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلالس کنت. بیاسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آلس تامت. درس قرآن کے سلسلس مز کر میں تہ برونٹ کن سورۃ الآل عمرانک ز آیہ مبارکہ تلاوت. بہرحال یمن آیات مبارکہ ہند تعلق تہ جنگ عہدس ستی. پتم کینٛہہ درس نمو تہ پتھ کنت تاکہ تہ گژھِ یاد دہانی اور یمن آیاتن گژھِ جوڑ یا ربط یہ سمجھ. پتم کینٛہہ آیات یم زن جنگ عہدس متعلق اس پڑے یم ساتن زن جنگ عہد اختتام سپدیو یل مدینہ پاک واپس گئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن صحاب صحابن ست تو وہاں پر منافقین نے اور یہود نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا تھا اور مختلف قسمک تان مختلف قسمک یم زن ات کیا ونن ایزا رسانی تم دیون مسلمانن کہ اگر آپ نے ہمارا مانا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اگر تہ پنن گھر مز روزیو وشو یہ پہ ما گھساو اس یا اس طرح آپ کو قتل نہیں کیا جاتا. اگر ہمارے مشورے پر عمل کیا ہوتا تو یہ دن ہمیں دیکھنا. بہرحال مختلف قسم چما گویاں اور مختلف قسم چم زن کت لاج تم ساتنس یہودو اور منافقو کرنے. اس پر پھر آیات نازل ہوئی تھی حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جنگ عہد کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین سے انفاق فی سبیل اللہ کی اپیل کی تھی کہ اب ان لوگوں کو بسانا ہے. یہ زن یوتاما یم زن پتہ مختلف یتیم گئی پود بیکاز آف یہ زن جنگ عہد میں شہید یہ صاحب صاحب. تو انہوں نے یہ بھی چما گویا کی تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک اب ان کا اللہ غریب ہو گیا ہے اسی لیے یہ اب مال کی جو اپیل کریں یا انفاق کی اپیل کریں. بہرحال مختلف طریقوں سے یہ مسلمانوں کو ستاتے تھے اور ان کو تانے دیتے تھے. اس پر پھر آیت نازل ہوئی تھی کل نفس ذائقۃ الموت یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی ایذا رسانیوں پر دل تنگ مت کیجیے. اس سے پہلے بھی یہ نبیوں کو جٹلا چکے ہیں جو انہوں نے وہ مطالبہ کیا تھا کہ تل کرنی قربانی اس کو آسمانی آگ اگر آپ کو یاد وہ آتا ہے. بہرحال اس پر صحابہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیجئے. ان کا معاملہ ایسا ہی ہے. انہوں نے اس سے پہلے بھی انبیاء کو ستایا ہے بلکہ کچھ انبیاء کو تو انہوں نے قتل بھی کیا ہے. پھر کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت ہر ذی نفس کو مرنا ہے ان کو وہاں جواب دینا ہے. ان کو بھی اپنی بدعمالیوں کا وہاں پر جواب دینا ہوگا اور اسی کے مطابق ان کو سزا ملے گی. اور جو اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے ہیں جو اللہ کی راہ میں مصیبتیں اور مشکلات اٹھاتے ہیں ان کا انعام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو پورا پورا دے گا. اور پھر آخر پر مسلمانوں کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ ان دنیاوی معیارات کو چھوڑ دیجئے. کامیابی اور ناکامی اس پر نہیں ہے کہ آپ کو جنگ میں وقتی طور پر شکست ہو گئی یا کافر جو ہے وہ وقتی طور پر آپ کر غالب آ گئے. یہ کامیابی کا حقیقی معیار بلکہ حقیقی معیار یہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل ہو گیا وہی اصل میں کامیاب. ہاں وقتی طور پر اگر ان کو دنیا میں ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے وقتی طور پر اگر ان کو دشمن سے ہار بھی ہوتی ہے بہرحال اس پر آپ کو زیادہ غم زدہ یا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یم آیات میں پڑھ حتیٰ کہ اگر وقت چڑھو میں نے 2 آیت اور نہیں پڑھی یم آخری 4 آیت یم زن جنگ عہدس پہ آمت یہ بطور تبصرہ کے اور جو ان میں یم زن ات مز تربیت وہ بیان کی گئی ہے. اس کے بعد پھر
आखिरी रुकू होगा सूरह आल इमरान का, इंतहाई अहम रुकू और इंतहाई अतन यात जन फजीलत आमच अहादीस मज इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़, वो हम इंशाअल्लाह रहमान कल या इससे बाद के दिन दरस में पढ़ेंगे। आज पढ़ा यम आयात, मैंने पस मंजर इसलिए बयान किया तक वक्त गो मज ज़्रे दरस गए, हमें इस मौजू से थोड़ा हम हट गए थे, अवे करनो में तो याद दहानी ताकि तुह तर फिक्री रबत क्या आयातन। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं लतुबलवुन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, इन आयात में खिताब मुसलमानों से है। यथ आय मुबारकस में खिताब आमद कुमन करना मुसलमान सहाब सबन, और कुरान का ये मौजज़ा है। कुरान सिर्फ उस वक्त के लोगों से खिताब नहीं करता है बल्कि कयामत तक आने वाले मुसलमानों से ये खिताब है। क्या खिताब है? लतुबलवुन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम। हाँ, बला मज, ये लफ्ज हमने इससे पहले भी पढ़ा है। बला कहते हैं आजमाइश को। बला वन क्या? आजमाइश। इस पर वन खुदाया बलाय निश बचाओ, ये क्या को बलाय निश बचाओ, आजमाइशों निश बचाओ। लतुबलवुन्न, ला ये हर्फ ताकीद, यानी ताकीद के लिए आता है। लतुबलवुन्न जो नून मुशद्दद लास्ट पर है, ये भी ताकीद के लिए है। यानी अल्लाह तबारक व तआला इंतहाई मौक़द अंदाज में ये बात कहता है, लतुबलवुन्न, जरूर ब जरूर हम आपको आजमाएंगे। लतुबलवुन्न मतलब क्या को? जरूर ब जरूर आजमाओ इस फी अम्वालिकुम, आपके अम्वाल में भी, व अनफुसिकुम और आपकी जानों में भी। यानी जो ऊपर जिक्र किया गया कि जन्नत हकीकी कामयाबी है और जहन्नम से बचना यह हकीकी कामयाबी है। अब ये कोई आसान काम नहीं है। हंगत मंगे अल्लाह तबारक व तआला करने जन्नतस में लुकन दाखिल के, और हंगत मंगे बचाए अल्लाह तबारक व तआला लुकन जहन्नम के अजाब निश के। एक तो ये इसका रबत है इसके साथ कि जिस जन्नत का और जिस जहन्नम का ऊपर तज़किरा हो गया, इस जहन्नम से बचाव और इस जन्नत का दाखिला ये आसानी से और यूं ही अल्लाह तबारक व तआला सबको नहीं देगा, बल्कि इसके लिए क्या करेगा अल्लाह ताला? लतुबलवुन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, अल्लाह तबारक व तआला आपको जरूर ब जरूर आजमाएगा। किसमें? अपने मालों में भी आपको और जानों में। यानी कभी माल का नुकसान करके, कभी माल का घाटा करके, कभी माल अल्लाह की राह में खर्च करने की अपील करके, इस तरह से आपको अल्लाह आजमाएगा। और दूसरा रबत इन आयात का यह भी है कि जंग ओहदस में मुसलमान क्या गमज शिकस्त। अब ये परेशान थे और ये बिल्कुल अत्याशन एक यास और एक गम की कैफियत थी। अल्लाह ताला ने फरमाया अभी तो ये शुरुआत है, आपको तो जन्नत मिलने वाली है, आपको तो जहन्नम से छुटकारा मिलने वाला है। इसके लिए तो ये आपको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। और इसी पर बस नहीं है, लतुबलवुन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, हम आगे भी आपको आजमाएंगे। किसमें? आपके माल अम्वाल में भी और आपकी जानों में भी। और ये तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया भी। इसके बाद अहज़ाब हुआ, इसके बाद जंग खंदक हुई, इसके बाद तबूक का मुआरका हुआ। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने इन मोमिनीन को बाद में भी आजमाया। और यह हमारे लिए भी तरबियत है कि जन्नत का हुसूल या जहन्नम से खलासी ये इंसानों को ऐसे ही मुफ्त में नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए मुसलमान या इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला जरूर लोगों को आजमाएगा और जरूर पता करके रहेगा कि वाकई जन्नत का मुस्तहिक कौन है और वाकई जहन्नम से बचने वाले कौन लोग हैं। इसी कहा कल हमने जन्नत के बारे में पढ़ा कि ये इंतहाई खूबसूरत जगह है, ये इंतहाई अल्लाह के इनामात की निशान है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही लोगों को इसमें दाखिल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही लोगों को इस इनाम का हकदार बनाएगा? नहीं, बल्कि इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला जरूर खरे और खोटे को अलग अलग करके रखेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि खरा कौन है और खोटा कौन है? तो इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा लतुबलवुन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, हम जरूर ब जरूर हम आपको जरूर ब जरूर आइंदा भी अम्वाल आपके मालों में भी और आपके अनफुस यानी आपकी जानों में भी आपको आजमाएंगे। कभी बीमारी देकर, कभी अत्याचार शहीद का या कातिल होने की वजह से, या कभी जहाद में जो आपको नुकसान पहुंचेगा, इसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला आपको जरूर ब जरूर आजमाएगा। इससे पता चलता है कि आम पढ़ना वजीफ कि इतनी बार सुबहानअल्लाह पढ़ो, इतनी बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, इतनी बार ये वजीफा पढ़ो, आप जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन कलिमात की बहुत फजीलत रखी है।
अल्लाह तबारक व तआला ची जिक्रस वारिया ज्यादा फजीलत अता करमत, मगर ये भी सच है कि बगैर आजमाइश के और बगैर मुश्किलात के किसी को जन्नत मिलने वाली नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जरूर आजमा कर रहेगा। बल्कि रवायत मुझ आमुद अख शख्स आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत मज हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करन। तिरमिजी में ये रिवायत है कि एक अंसारी साहबी या एक अंसारी शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं हाथ तोसीद मोहब्बत। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बूझ दोपस पूरा सोच लो कि आप क्या कहते हो। इनको भी अर्ज, या रसूलुल्लाह वाकई में तोसीद मोहब्बत। फिर रसूलुल्लाह ने कहा कि ए शख्स गौर कर पूर क्या शुक वन, यानी आपका दावा क्या है इस पर गौर करो, ये का लकुट दावा क्या। तीसरी बार इस सहाबी ने फिर से कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं तोसीद मोहब्बत। इसके बाद 3 बार जब इस सहाबी ने कहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इस सहाबी से इस शख्स वापस दोपस तो फिर तैयार रहो, आप पर फक्रो फाका और एक रिवायत में आप पर मुसीबतें ऐसे ही दौड़ेंगी जैसे कि नीचाई या उतराई की तरफ पानी दौड़ता है। यानी तेल रूज तैयार कमर खतर, फक्रो फाका खतर और मुसीबत खतर। यानी इसका मतलब है कि जो भी ईमान का दावा करता है, जो भी इस्लाम का दावा करता है, बहरहाल उस पर लाजिमन मुसीबतें और परेशानियां आकर रहेंगी। ये परेशानियां क्यों आती हैं? यह चीज मकसद, एक मकसद यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इसके जरिए खरे और खोटे को अलग करता है। ये आजमाइश मानते ये भट्टी एक है, इस भट्टी में अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को और निखारता है और कुंदन बनाता है और इसी से वो जन्नत के काबिल बन जाते हैं। अल्लाह ताला फरमान वला तस्माउन्ना मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, और क्या होगा? वला तस्माउन्ना, और जरूर ब जरूर आपको सुननी पड़ेगी, मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, उन लोगों की बातें, ऊतुल किताब जिनको किताब दी गई। यानी आपको किनके ताने सुनने पड़ेंगे? अहली किताब के, यहूद के, मिन क़ब्लिकुम, जो आपसे पहले किताब दिए गए हैं, व मिनल लज़ीना अशरकू, और मुशरिकीन की बातें भी सुननी पड़ेंगी, अज़न कसीरा, जो आपको बहुत तकलीफ देती हैं। यानी इस जो जन्नत में आपको दाखला मिलने वाला, या जो जन्नत की कीमत क्या है? जन्नत की कीमत यह है कि एक तो आपको आजमाया जाएगा आपके माल के नुकसान के जरिए, आपके माल में आजमाइश के जरिए, या आपकी जानों की आजमाइश के जरिए से। एक तो ये इसकी कीमत है। दूसरा ये कीमत है जन्नत की कि आपको अहली किताब से और मुशरिकीन से इंतहाई तकलीफ दे बातें सुननी पड़ेंगी। ये प्यारा तो है बोझ। यानी आम तौर पर यह कहा जाता है कि अशका, मिसाल के तौर पर अशका दावत दिवन दीन या कोई दीन की बात कहते हैं, अगर थोड़ा जिड़कन अशका मलाल, मगर अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तो जन्नत की कीमत है, ये तो आपको जन्नत के इवज सुनना पड़ेगा लोगों से, खास तौर पर अहली किताब से और मुशरिकीन से। ये आपको तकलीफ दे बातें सुनाते रहेंगे। इसका रबत वो पिछली आयत के साथ है। ये तान दिवन मुसलमान अथो वुशवा, अगर तुम वाकई मोमिन आसो तेल आसो तुम गलबो लोगमुत, या अगर तुम सोन मशवर आसो मोनमुत यह आसे ना गुमत, तो अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन से कहता है कि ये जन्नत का दाखिला आपको यूं ही हुटमुटे मिलून तक क्या, बल्कि इसके लिए आपको आजमाया जाएगा। और दूसरा, आपको इन अहली किताब की और मुशरिकीन की कड़वी कसीली बातें, इनको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बल्कि टुकड़स खास पस मंजर यहूदो मुजो इंतहाई काबिल शायर और बड़ा मशहूर शायर था, उसका नाम था काब बिन अशरफ। योस मुसलमानन हिंद इंतहाई हिजो करन। हिजो वनन, हिजो कहते हैं किसी की बुराई करना नज्म की शक्ल में, यानी कंस बुराई करे अशारन मज, इसको कहते हैं हिजू। और किसी की तारीफ करना अशात के जरिए, उसको कहते हैं कसीदा। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात या कंस शख्स नात पढ़न अच्छा कसीद। मगर किसी की बुराई बयान करना, किसी को तकलीफ पहुंचाना अशार के जरिए, इसको कहते हैं हिजू। अरबिक वारिया महारत थावन अथ शायरी पे। तो ये काब बिन अशरफ ये इसी किस्म की शायरी करता था जिसमें मुसलमानों को वो बुरा भला कहता था। खास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो इंतहाई नाजिबा अल्फाज यसन सो कारण पन्नी शायरी में इस्तेमाल। तो अल्लाह तबार मुसलमानों को इसे बड़ी तकलीफ होती थी। मुसलमानों से बड़ दिल को ठेस लगती थी कि ये क्या शायरी से कारण, और ये कितनी गलाजत और कितनी बकवास बकता है किन के बारे में? मुसलमानों के बारे में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हत्ता कि रिवायात में आता है ये मुसलमानों की औरतों का नाम ले लेकर अशकिया और इंतहाई बेहुदा कलाम करता था। यानी इंतहाई बेहुद कलाम उसे कारण साहब सबियन खानदारिन मुतलिक उनका नाम लेकर अशआर में, और अजवाज मुतहरात
उनका नाम ले लेकर ये अशार में इंतहाई बकवास और इंतहाई गलीज जबान इस्तेमाल करता था। यम कथ बूजित यम अशार बूजित और मुसलमान क्या गसन इंतहाई तकलीफ। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अरे आपको तो जन्नत में जाना है, आपको तो जन्नत के वारिस हो, इसलिए एक तो आजमाइश आपको अहद की तरह और जानों के नुकसान की तरह, माल के नुकसान की तरह, इसका भी आपको एहतमाम और ये तो आपको लाजमी देना पड़ेगा। दूसरा, आपको इन यहूद की और इन मुशरिकीन की कड़वी कसेली बातें सुननी पड़ेंगी, इस पर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा और आपको अल्लाह की खातिर ये सब कुछ सुनना पड़ेगा। अगर तय आज वुचू आज भी यही वतीरा है यंजन कुफ्रुक या यंजन क्या वनन जो बातिल कौमें हैं, ये आज भी यही वतीरा इख्तियार करते हैं। कभी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यंजन नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक कार्टून बनाते हैं, कभी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नाजिबा यंजन अल्फाज कहते हैं, कभी ये अज़वाज मुतहरात पर और कभी क्या शनन खुलफाए राशिदीन पर और कभी सहाबा पर इंतहाई गलीज बकवास बकते हैं। बहरहाल यशीमन अंद पे क्या रोदमुत वतीर रोदमुत। हत्ता कि अगर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, अगर तक वुचमुत आसो यम हाल युजन फलस्तीन और वो तो अभी भी चल रहा है। आप देखिए इसराइली अफवाज ने वहां पर यमजन मुसलमान खातून उनके प्राइवेट जो यमजन आसन क्या वन प्राइवेट यमजन तिहंद कपड़े होते हैं या अंदरूनी यमजन आसन अंडरवियर्स और अंडर यमजन शर्ट्स आसन, उनको उन्होंने सोशल मीडिया पर बाज़ाब्ता उनके साथ इंतहाई गलीज हरकतें करते हुए दिखाया। मगर ये तो असल में अज़ल से ही ये चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमान कि वला तस्मउन्ना जरूर ब जरूर लतबलुगुन्ना फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, जरूर ब जरूर हम आपको आजमाएंगे आपके माल में भी, आपकी जानों के नुकसान में भी। वला तस्मउन्ना और जरूर ब जरूर आपको सुनना पड़ेगा मिनल लज़ीना उतुल किताब, अहली किताब से, मिन क़ब्लिकुम जिनको आपसे पहले किताब दी गई, व मिनल लज़ीना अशरकू और मुशरिकों से, अज़न कसीरा इंतहाई तकलीफ दे बात है। ये पे उतर बोजन अल्लाह ताला फरमान व इन तस्बिरु, बस अगर आप सब्र करोगे, यानी अगर तो यमन बकवास पे यमन फजूलियातन पे और आप इन आजमाइशों पर इन मुश्किलात पर अगर आप सब्र करोगे, व तत्तकू और क्या करोगे और तकवा इख्तियार करे रखोगे, यानी यमन हालातन मज करियो तय अल्लाह तबारक व तआला से नाफरमानी के, बल्कि इन हालात में भी आप सब्र से काम लो और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। फइन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, तो ये बहुत बड़े हौसले वाले काम है, यानी ये इंतहाई हौसले वाले काम और ये बहुत अजर वाले काम हैं। अच्छा, इस मामले में भी इन हालात में भी मुसलमानों को क्या कहा गया है कि ताई हेजो सब्रस काम और ताई हेजो अल्लाह ताला से तकवा कर इख्तियार। अच्छा, फिर से मैं दोबारा आपको रिपीट कर याद देना, अब सब्र का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको बस मारता ही रहे, कोई आपको लताड़ता ही रहे, तहरीर शानदार क्या को सब्र ना। सब्र का हकीकी माना मैंने पिछले दरसों में भी कहा है, सब्र का मतलब यह है कि हर हाल में हम अल्लाह की फरमाबरदारी करते रहें। प्रत हालस मज गए रोजन अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी। हाँ, इसीलिए उलमा ने मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह आयत के तफसीर में लिखत कि इसका मतलब यह नहीं है कि जब इंतकाम का मौका हो तो आप इंतकाम ही नहीं लें, और जब आप उनके सामने किताल का आपको मौका मिले या किताल का हुक्म हो आप उस वक्त कहेंगे नहीं सब्र ही करना है। नहीं, ये बिल्कुल सब्र के बरखिलाफ है कि किताल के वक्त आप किताल ना करें और इसी तरह इंतकाम के वक्त आप इंतकाम न लें। हाँ, जिस वक्त इंतकाम का मौका हो, जिस वक्त इनके साथ किताल का मौका हो, जहाद का मौका हो, उस वक्त आपको इंतकाम लेना होगा, उस वक्त आपको जहाद में जाना होगा। यही सब्र का माना है, यानी हर हाल में अल्लाह की क्या करना, फरमाबरदारी करना। अल्लाह ताला फरमान व इन तस्बिरू, बस अगर आप सब्र करो, व तत्तकू और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अल्लाह का तकवा इख्तियार करने का मतलब क्या है? अल्लाह का तकवा इख्तियार करने का मतलब यह है कि आपको भी इन जैसी नाजिबा हरकतें नहीं करनी है, क्योंकि अल्लाह का तकवा का मतलब है कि अल्लाह ताला से हदूदन हुंद ख्याल थाउन। अब अगर ये आपको अगर यम का इखलाकी पाबंदी करन पन्न कलामन मज, अगर यम इखलाकी पाबंदी पन्न अमलन मज करन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी हद से निकल जाओ, नहीं, बल्कि आपको उस वक्त अल्लाह का तकवा इख्तियार करना है। आपको इनका जवाब बड़े महज़ब अंदाज से और अल्लाह के हुदूद में रहते हुए इनका जवाब देना है। आपको
ان کی طرح بد زبانی، آپ کو ان کی طرح یہ زن چھ مشرکانہ اعمال میں بہرحال تحت مجھ تہ ملوث گھن کی اللہ تعالیٰ فرمان اللہ تعالیٰ لاسٹ پر اس آیت میں فرماتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ پس جان لو ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ بہت بڑے گردے والوں کا کام ہے، یعنی یہ لکٹ کام ہے کہ تہ کریو یمن حالات میں سب انسان کو پیش آتا ہے، کوئی آپ کے نبی کے بارے میں کوئی گستاخانہ کلام کرے، کوئی ازواج مطہرات کے بارے میں گستاخانہ کلام کرے، یا کوئی مسلمانوں کے بارے میں گستاخانہ کلام کرے، یا امت کی ماؤں اور بہنوں کی عزت کی دھجیاں اڑاتی جائیں اور ہم دیکھیں یہ سوشل میڈیا پر یا اپنی آنکھوں سے، اس وقت صبر سے کام لینا اور اس وقت اللہ کے حدود کا پاس و لحاظ رکھنا یہ کوئی معمولی کام اللہ تعالیٰ فرمان ہاں آپ کے جذبات اس وقت مجروح ہو جائیں گے، آپ اس وقت آپے سے باہر ہو جاؤ گے، مگر اللہ تعالیٰ فرمان اتن تکرزو صبر سے کام اور تقوی سے کام، اور ساتھ میں اللہ نے کہا وَإِنَّ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ بہت بڑے دل گردے والوں کا کام ہے، یعنی یہ کا لکٹ کاما کہ اس کے لیے بہت حوصلے کی، اس کے لیے بہت عزم کی اور اس کے لیے بہت اعلیٰ اخلاق کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمان فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ بہت بڑے دل گردے والوں کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اس اعلیٰ اخلاق کرنے اس عطا، اللہ تبارک و تعالیٰ کرین اسے صحیح معنی مز قرآن پاک پر عمل کرنے توفیق، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔